welcome to give me my review. Okay. Annual 2019. ठीक है. Gravida 2 para 0 A1 presented in OPD with complaints of tiredness, cold intolerance, and hoarse voice. Investigations may her TSH was raised, free T4 level was below normal. She's diagnosed as a case of hypothyroidism. A, what is the incidence of hypothyroidism in pregnancy? What mean question to ask, मतलब incidence कौन याद करता है? खैर. B, how often would thyroid function tests be repeated in the pregnancy? And C, what would be the fetal effects of suboptimal thyroxine replacement? Yes. So thyroid disease is one of those things that we really know really well. ठीक है, तो उन्होंने उसकी cold intolerance, hoarse voice वगैरह बता दी, उन्होंने बता दिया hypothyroidism है. अब हमें incidence चाहिए, तो incidence page 152 के ऊपर they said hypothyroidism is found in around 1% of pregnant women. So incidence is 1%. Okay, and B, how often thyroid function test should be repeated in the pregnancy? And बुक में लिखा था कि आप सीरियल जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, यू हैव टू परफॉर्म देम सीरियली इन ईच ट्राइमेस्टर. तो बेसिकली जब भी वो वुमन जो है अपने विजिट पे आए, तो एवरी टाइम शी कम्स फॉर हर विजिट, यू नीड टू डू हर थायराइड फंक्शन टेस्ट. ठीक है, तो जो भी उसके विजिट्स होंगे उसमें आपने उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट करने हैं. Alright, this is the best answer I could find for this. If anyone has anything to add at this point, I would really appreciate it. ठीक है, and see what would be the fetal effects of suboptimal thyroxine replacement. हाँ जी, अगर सही रिप्लेसमेंट नहीं हो रही तो एक तो आपको डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, उसके अलावा मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, और अगर आप करेक्ट कर देंगे हाइपोथायराइडिज्म को, तो प्रेगनेंसी की आउटकम या कॉम्प्लिकेशंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है. अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर या डेवलपमेंटल डिले होगा या प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई could find. I recommend going over thyroid disease in pregnancy in a little bit of detail because अब ये आ गया है एक दफा, तो हमें कर लेना चाहिए. ठीक है ना? ठीक है. Question number 2. A gravida 3 para 2 previous SVD at term is fully dilated from the last 2 hours. On PV examination, vertex is +2 station. Okay, right occipitotransverse है. fetal heart rate 110 है. Okay, मतलब अभी normal है, लेकिन 110 was the cutoff, and patient is also physically exhausted. Okay, which instrument would you apply in this patient, and what are the prerequisites for instrumental delivery? All right, तो एक आपने देखना है कि when she has presented at term. ठीक है, and then you have to see कि जो उसके head है ये right occipital transverse है. I'm just going to attempt to draw this. तो this is ये cervix है, ये बहुत dilate होके ये सारी side पे गई हुई है. ठीक है, और right occipital transverse means कि ये head है और ये baby की nose है. ठीक है, तो what we want it to be, we want it to be occiput anterior. ठीक है, तो ये उसका anterior है और ये posterior है. तो we want this head to be like this, और और इसकी nose baby की इधर होगी. ठीक है, occiput anterior मतलब उसका occiput anterior है, उसकी nose इधर होनी चाहिए. लेकिन अभी क्या है, उसका है right occipital transverse. Wait, I've messed it up. Baby की nose sorry इधर है. है wherever the baby's nose is, उसका suture इस तरह पड़ा है, and this is not the way we want the baby to be in. ठीक है. अच्छा, under any other circumstances, आप ventos करते हैं या forceps? What is better? Just in general मैं पूछ रही हूँ. If somebody randomly asked you, ventos or forceps, what would you say? In terms of instrument of choice.
ठीक है, you would say ventouse in terms of मतलब ventouse in terms of complications. हाँ, ventouse किसी ने आंसर दिया, absolutely correct. You would go for ventouse. ये first line instrument है by many obstetricians. इसमें maternal trauma भी कम होता है, baby का trauma भी कम होता है. ठीक है, what are the cases in which you won't use ventouse? Ventouse एक तो हम just less than 34 weeks के अंदर हम वेंटोज नहीं यूज करते हैं, लेस देन 34 वीक्स, और 35 to 36 वीक्स तक भी रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ठीक है, अगर फेस या ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो तब भी हमने वेंटोज नहीं यूज करना. ठीक है, क्या क्या थी, हम लोग वेंटोज 34 वीक्स से कम में नहीं यूज करते बिकॉज रिस्क होता है सेफल हीमाटोमा और उस सबका. 35 to 36 वीक्स में भी रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और फेस या ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी नहीं यूज करना. ठीक है, ओके, तो अब ये आई है एट टर्म. हाँ, एसवीडी एट टर्म है, फुली डायलेटेड है, +2 है, मतलब सब कुछ ठीक है, बस शी इज एग्जॉस्टेड, तो यू जस्ट नीड टू हेल्प हर आउट. और फीटल हार्ट रेट अभी 110 है, नॉर्मल है लेकिन थोड़ा लोअर लिमिट वाला नॉर्मल है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको डिलीवरी को कर दें जल्दी से. ठीक है, अब द थिंग इज आई थिंक दैट इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए फोर्सेप्स. The reason I'm saying this is because of the way the baby's head is at this point. Okay, because you're gonna need to help it along just a little bit, just to um, give it the occiput anterior. So for that you would use forceps. ठीक है, तो इसका आंसर है नंबर 2 पे. हालांकि फोर्सेप्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस का और वो सब का, लेकिन बिकॉज वी नीड टू हेल्प अलोंग द हेड अ लिटिल बिट, तो आई वुड फॉर दिस आई वुड राइट फोर्सेप्स. ठीक है, बी, व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी? हाँ जी, व्हेन डू वी डू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी? Okay. Somebody has written, mother should not have HIV or hepatitis, confirmed rupture of membranes. Yes. Okay. Yeah. Cervix should be dilated. हाँ जी. और स्टेशन क्या होना चाहिए? 0 से नीचे हेड का स्टेशन. हाँ, वर्टेक्स प्रेजेंट हो, कैपिटर मोल्डिंग जो है वो ज्यादा ना हो. ठीक है, सिवियर ना हो, मतलब माइल्ड हो इज ओके. पेल्विस एडिक्वेट हो, ये ना हो कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट. ये बाय द वे ये 239 पेज के ऊपर आपके पास सेफ्टी क्राइटेरिया लिखा हुआ है. ठीक है, तो प्रीरेक्विजिट मतलब ये सारी कंडीशंस आपकी टिक होंगी तो यू कैन गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. ठीक है, सर्विक्स फुली डायलेट होना चाहिए, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो, स्टेशन 0 से बिलो हो, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हेड आपको पता चल गई हो और वर्टेक्स हो. ठीक है, और कैपिट या मोल्डिंग जो है वो ज्यादा ना हो, पेल्विस भी एडिक्वेट हो. ठीक है, उसके अलावा पीपल हैव रिटन एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है, एम्प्टी ब्लैडर करना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है मदर से. ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स. तो अभी उन्होंने 4 मार्क्स है, तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखे ना. ठीक है, या so somebody said 239 पे टेबल दिया हुआ है, वही लिखना है. या okay. So this was it for the question number 2. Where we use ventouse and forceps. Okay. Right. अच्छा, अब हमने चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये है कि एक तो आपने देखना है कि उसकी स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है. ठीक है, वेंटोज और फोर्सेप्स के दरमियान जो फर्स्ट लाइन प्रेफर्ड है वो वेंटोज है. उसके लिए आपके पास आपका ऑक्सीपिट एंटीरियर हो. ठीक है, उसके लिए आपके पास जो मोल्डिंग है या कैपिट है वो ज्यादा ना हो. ठीक है, और जेस्टेशनल एज जो है टर्म हो. टर्म से पहले अगर होगा तो फोर्सेप्स लिखना है आपने, या फिर अगर वो लिख दें कि उसका ऑक्सीपिट एंटीरियर नहीं है तो फिर मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही हो, बस ऑक्सीपिट एंटीरियर हो वेंटोज के लिए. ठीक है, और वेंटोज का फेलियर रेट ज्यादा है लेकिन रिस्क, मैटरनल रिस्क कम है ऑफ इंजरी. ठीक है, फोर्सेप्स का ये है कि फेलियर रेट कम है और मैटरनल इंजरी का लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, जैसे लैसरेशन हो वो सब. ठीक है, ओके.
What else did I want to tell? हाँ, ये main चीजें हैं. अब हमारी setting में what I have noticed is that forceps are used more often. ठीक है? That's just an observation. These are the basic points that I can remember off the top of my head right now, but मैंने इसके notes बनाए हुए हैं. इंशाल्लाह मैं आपको group में भेज दूंगी. Let me just write down that that's something I have to send. Ventus versus forceps. Okay. ठीक है. अब number 3 question. 28-year-old lady, primary gravida at 38-week gestation, presented to labor ward with, excuse me, somebody has said कि contraindications दी हुई page 238 पे Ventus की. Yeah. Okay. Let's just go to the next question. इसकी मैं आपको differences भेज दूंगी, ठीक है? Because book में ना paragraph form में लिखा हुआ है और points form में हम याद करें तो वो easy हो जाता है, ठीक है? 28-year-old lady, primary gravida at 38 weeks gestation, presented to labor ward with labor pains for 4 hours. She is now fully dilated for the last 2 hours. She has strong regular uterine contractions at the rate of 3 to 4 in 10 minutes. Her vertex is at the level of ischial spine, तो मतलब ये हुआ 0 level पे. Diagnosis of poor progress of second stage of labor is made. उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है? What is the normal duration of first stage of labor in primary gravida and multigravida? इन्होंने first stage of labor का पूछ लिया है, not the total labor. अच्छा, what I found written in the book was हमारे जो first stage of labor है उसके अंदर एक latent phase होता है और एक active phase होता है और उसका उन्होंने ऐसे separately बताया हुआ था, ठीक है? तो latent phase हमारे पास 3 to 8 hours का होता है. Primary gravida के अंदर बता रही हूँ, primary gravida के अंदर latent phase 3 to 8 hours का होता है और active phase 2 to 6 hours का होता है. और मल्टी ग्रेविडा में लेटेंट फेज लेस देन 3 आवर्स का है और एक्टिव फेज लेस देन 2 आवर्स का है, ठीक है? आई एम जस्ट गोना रिपीट दिस. ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, आई हैव नॉट रिटन द पेज. खैर, प्राइमरी ग्रेविडा में लेटेंट फेज है 3 to 8 आवर्स और एक्टिव फेज है 2 to 6 आवर्स. तो अगर आप इसको टोटल ऐड करें, टोटल फर्स्ट स्टेज को, तो 5 to 14 आवर्स बन रहा है. ओके, पेज 202. थैंक यू फॉर दैट. पेज 202. Okay, and multigravida के अंदर latent phase less than 3 hours और active phase less than 2 hours. So basically less than 5 hours आपका ये first stage of labor हो गया in the multigravida. और active phase में I want you to remember this general rule: 1 centimeter per hour dilation of cervix. ठीक है? 1 centimeter per hour dilation of cervix. तो 4 hours हो गए हैं. Fully dilated for last 2 hours. अच्छा, इसके अंदर इस पे अप्लाई नहीं होता, बट क्वेश्चन स्टेम में जस्ट ऑब्जर्व करें. यूजुअली 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन अगर नहीं हो रही तो स्लो है, ठीक है? यूजुअली दैट्स हाउ इट इज. 1 सेंटीमीटर पर 2 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा में देखते हैं. 1 सेंटीमीटर पर 2 आवर्स नहीं है तो इट्स वेरी वेरी बैड, ठीक है? जस्ट पोर प्रोग्रेस है. Okay, B के अंदर enumerate possible causes of poor progress of second stage of labor. Power, passenger and passage. ठीक है, ये हमने सारी चीज डिस्कस की थी. पावर, पैसेंजर, पैसेज. यूट्राइन कंट्रैक्शन एडिक्वेट नहीं है. बेबी हेड्स टू बिग, मदर्स पेल्विस टू स्मॉल, स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटी है पेल्विस की. हाँ, जो 3 P's जो हैं उससे आप याद रख सकते हैं. फिर पोर प्रोग्रेस उससे भी होती है अगर आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ठीक है? C, discuss outcomes of labor in occipito-posterior position. हाँ जी, occiput posterior हो तो क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं? This is where I will draw the baby's head. Okay, तो this is anterior and this is posterior. और हमारा occiput है posterior. We don't want it to be here. ये बेबी की nose है, ठीक है? अब हमारे पास 3 क्या ऑप्शंस हैं? Usually what happens is this is what we refer to as occiput posterior, but normally क्या होता है कि ये हल्का सा ऐसे पड़ा होता है. ये उसकी नोज है इधर, ठीक है? और ये उसका ऑक्सीपुट है. अच्छा, अब हम इस सर्कल को इस तरह पीसेस में डिवाइड कर देंगे, 8 पीसेस में, ठीक है?
1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि ये 1/3 1/4 एक सेकेंड 1/4 रोटेशन करे यहाँ पे और नाक इधर आ जाए, ये जो मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया हुआ है, और हमारी हो समथिंग विच इज कॉल्ड फेस टू प्यूब डिलीवरी। फेस टू प्यूब डिलीवरी ये पहली हमारे पास आ गई, फेस टू प्यूब डिलीवरी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये जो है दिस बेबीज हेड डिसाइड्स कि इसने इस तरह लॉन्ग रोटेशन ऑफ द सर्कल करनी है 3/8, ये 1/8 रोटेशन थी, सॉरी 1/4 पहले पता नहीं क्यों बोला, 1/8 रोटेशन और 3/8 रोटेशन करके अभी ऑक्सीपुट एंटीरियर आ गया, तो फिर होगी नंबर 2 ऑक्सीपुट एंटीरियर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी सेकेंड हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि इसकी बेबी की, इसके लिए मैं जरा ये चेंज कर लेती हूँ कलर, पेज नंबर नहीं है इसका, ये मेरे ब्रेन से निकल रहा है ये आई डोंट हैव मतलब ये बुक के बिट्स एंड पीसेस हैं, इफ समबडी फाइंड्स द पेज नंबर प्लीज लेट मी नो। ओके, द व्हाट कैन हैपन इज अब बेबी का जो हेड है, ये हमारे ना सर सोहेल है, उन्होंने इस तरह पढ़ाया था, तो आई जस्ट रिमेम्बर इट फ्रॉम हिम, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा इस तरह कहा था कि अच्छा अब ये जो है इसकी 1/8 अगेन ये रोटेशन हो, बट इन द वे दैट वी डोंट वांट इट टू, तो बेबी की नोज इधर आ जाएगी और ऑक्सीपुट इस तरह आ जाएगा। अब ये हो गया ट्रांसवर्स, अगर ट्रांसवर्स हो गया तो दिस कंडीशन इसकी वैसे prerequisites हैं, but eventually what will happen is it will go into number 3 deep transverse arrest, ये फंस जाएगा हेड, deep transverse arrest। अब मैं इसको टेक्स्ट में लिख देती हूँ, पहली थी फेस टू ट्यूब डिलीवरी, ठीक है, दूसरी थी हमारे पास ऑक्सीपुट एंटीरियर हो गया नॉर्मल, तीसरी थी नंबर 3 deep transverse arrest, then the baby's head is stuck। ये हमारे पास 3 आउटकम्स हैं of labor in the occiput posterior position, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, बिकॉज ये दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट बुक में थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है डिफरेंट एरियाज में, तो शायद ओके सर की बुक में ये डायग्राम है, या बाय द वे मेरे नोट्स भी हैं इस पे, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है पूरी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस, और नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो I'll also send them in the group if you guys wish, ठीक है। तो ये हमारे पास थी 3 outcomes of the labor, yeah, okay, phase 2 pube delivery, occiput anterior हो गया normal delivery, and then we will have deep transverse arrest। Okay, somebody has written page 221 for reference. I'll write that down for myself as well to give it a read. 221. Okay, next question पे चलते हैं। Okay. Question number 4. A primary gravida has presented in the antenatal clinic at 14 weeks. On examination, she was found to have a symphysiofundal height larger than the dates. On ultrasound, she is diagnosed to have twins. जबरदस्त बता दिया उन्होंने। अच्छा, enlist 5 maternal complications that occur with twin pregnancy, and B, enlist 5 fetal complications more common in twins than single pregnancy। अच्छा, अब इन्होंने 5 पूछ ली है, तो आप ने उनको 5 बतानी है, ठीक है। जब हमारे पास ट्विन प्रेगनेंसी होती है, जब एक बच्चा होता है तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, एनीमिया हो सकता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी हैं, वॉमिटिंग है, डायफ्राग्मेटिक स्प्लिंटिंग, लॉर्डोसिस, वो जो स्पाइन ऐसे हो जाता है कर्व, और वो सब होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 बेबीज होंगे तो ये सब चीजें exaggerate हो जाएंगी, there will be an increased risk of anemia, there will be increased physiological changes in pregnancy, increased diaphragmatic splinting, increased lordosis, ठीक है। there is an increased risk of preterm delivery, जब इतना बड़ा वो हो जाए uterus stretch, तो it wants to deliver the babies, ठीक है। there is also increased risk of preeclampsia, increased risk of DIC, increased weight gain,
increased pressure on all her organs. ठीक है, तो 5 maternal complications में you can write, and then there will be a longer labor, there will be increased risk of antepartum hemorrhage, increased risk of postpartum hemorrhage, increased risk of thromboembolic events. ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें लिस्ट कर दी हैं, बहुत लंबी। जो चीजें नॉर्मल प्रेगनेंसी में हो रही थी, जो हो सकती थी, वो अब ट्विन प्रेगनेंसी में उनके सबके इंक्रीज रिस्क हो चुके हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट ऑल ऑफ देम। 5 मांगी है तो 5 इनमें से लिख दें। ओके, बी में इन लिस्ट 5 fetal complications more common। अच्छा, ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड थिंक अंदर 2 बेबीज हैं या मोर, मतलब 5 में तो ट्विंस हैं, अंदर 2 बेबीज हैं और जगह उतनी ही है, तो क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। उसके अलावा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। उसके अलावा वी हैव दीज सिंड्रोम्स जो ट्विंस में ही होते हैं, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और वो जो ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम है, सीक्वेंस है क्या है उसका, ठीक है, वो टैप्स और TTTS। फिर इंक्रीज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एनेंसेफली, होलोप्रोजेंसेफली। फिर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, मैंने पेज 108 लिखा है फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ओपन 108 एंड सी अगर कोई बॉक्स है या पता नहीं टेक्स्ट में से है। टेक्स्ट में से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, रीड देके। तो ये हमारी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो मदर में हो रही थी और जो फीटस में हो सकती थी। Okay. Question number 5. During pregnancy, there are physiological changes in all the maternal systems. Regarding that, enlist changes in the reproductive tract: A, uterus; B, cervix; C, vagina. यूट्रस का तो अगर आपने पढ़ा भी ना होना ये वाला चेंज, तो आप खुद सोच लें भाई, अंदर बेबी है तो यूट्रस की शेप को क्या होगा, साइज को क्या होगा, और उसकी कंसिस्टेंसी को क्या होगा। ठीक है, कोई नॉर्मल यूट्रस पेयर शेप्ड का होता है, प्रेगनेंसी में वो सैक लाइक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा साइज इंक्रीज होगा, पेल्विस से एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा यूट्रस। उसके अलावा क्या कहते हैं, कोई चीज अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, कंसिस्टेंसी हो जाएगी फर्म। ठीक है, यूट्रस की कंसिस्टेंसी हो गई फर्म। तो ये सब चीजें ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड आप बता सकते हैं। Now, again, I'll go back to these physiological changes of pregnancy with notes. Really, I wish I could give a shout out to the person who's made them. They're really excellent. तो इसके अंदर मैंने, हाँ, तो यूट्रस की उन्होंने बताया हुआ है। आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन जो नोट्स हैं। मुझे कोई यस आंसर कर दें अगर नोट्स नजर आ रहे हैं। ओके, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, यूट्राइन वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है, शेप और पोजीशन ऑलरेडी मैं बताया है। अच्छा, देयर समथिंग दैट हैपेंस कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेशन। स्पाइनल कॉलम और सिग्मोइड कॉलम की वजह से इट रोटेट्स ऑन द लॉन्ग एक्सिस टू द राइट। ठीक है, कंसिस्टेंसी फर्म हो जाती है, और आफ्टर 12 वीक्स blah 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 blah. Okay, yeah, I think this is sufficient to answer that 2 mark question. ठीक है, अब next उन्होंने cervix का पूछा था और vagina का पूछा हुआ था। cervix becomes soft and blue in color. ठीक है, mucosa जो है वो thick हो जाता है। फिर there is something called a cervical ectopy. ठीक है, एक्सटर्नल ऑस जो है उसकी फायरी रेड अपीयरेंस हो जाती है। फिर म्यूकस प्लग बन जाता है सर्विक्स में, म्यूकस उसका बहुत थिक हो जाता है। एंड देन शो तो खैर वो लेबर पे ही होता है, वो जो पास आउट होता है ना, प्लग, ब्लड स्टेन्ड प्लग, तो वो उसको शो कहते हैं। ओके, फिर वेजाइना का उन्होंने 1 मार्क का पूछा हुआ है, तो यू कैन राइट इंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स हैं, उसकी वजह से वायलेट कलर हो जाता है, और जो pH है वेजाइना का वो कम हो जाता है, which predisposes us to infections. ठीक है, तो ये चीजें थी, ये उसकी physiological changes of pregnancy. This question number 5. Okay, अब हम question number 6 पे आ गए हैं। Question number 6 में हमारे पास है Gravida 3 para 2 presented in the antenatal clinic at 32 weeks. On examination, the symphysiofundal height is 36. Okay. You suspect polyhydramnios and plan a detailed ultrasound examination. Which are the 5 fetal causes of polyhydramnios which can be detected with the help of ultrasound?
What are the 3 antepartum and 2 intrapartum complications of polyhydramnios? हाँ जी, fetal causes ऐसी जो आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आए. ओके. अच्छा, एक तो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड यू कैन जस्ट राइट मल्टीपल प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो पॉलीहाइड्रामनियोस हो सकता है. अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसी को ना आप ओलिगो में और पॉली में दोनों में घुसा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ट्विन का पॉलीहाइड्रामनियोस होता है और दूसरा का ओलिगोहाइड्रामनियोस होता है. ठीक है, तो इसको उसकी कॉज में डाल सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये ज्यादा क्यों है पॉलीहाइड्रामनियोस कि जो फीटस है वो स्वॉलो नहीं कर रहा एमनियोटिक फ्लूइड. स्वॉलो नहीं कर रहा मतलब उसको वो हो सकता है डुओडनल एट्रीजिया या एसोफेजियल एट्रीजिया, और जो डुओडनल एट्रीजिया है वो अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है एज अ डबल बबल अपीयरेंस. ठीक है. उसके अलावा एनेंसेफली अगर हो तो उस केस में भी fetus will not be able to swallow the what do you say amniotic fluid. उसके अलावा अगर डाउन्स सिंड्रोम हो, डाउन्स का बेबी हो या कोई इस तरह कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी हो तो अल्ट्रासाउंड पे आपको नकल ट्रांसलूसेंसी और वो सबसे पता चल जाता है. ठीक है. और उसके अलावा मैंने क्या लिखा हुआ है? Somebody has sent page 90. Okay. पेज 90 के ऊपर देव रिटन द ओके, वो बॉक्स बना हुआ है कि किस किस वजह से. तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डुओडनल एट्रीजिया, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ये भी नजर आ जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड पे. एनेंसेफली. अच्छा, न्यूरोमस्कुलर फीटल कंडीशन. न्यूरोमस्कुलर फीटल कंडीशन अल्ट्रासाउंड पे तो खैर आई डोंट थिंक नजर आएगी. मल्टीपल जेस्टेशन, इट मे बी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स. ठीक है, तो अब 5 गिनने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको, बिकॉज जो मुझे रीजंस मिली हैं उसमें टोटल हमारे पास है ही 6. और एक तो उन्होंने इडियोपैथिक लिखा है, फिर उन्होंने मल्टीपल जेस्टेशन लिखा हुआ है, एसोफेजियल एट्रीजिया, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, फिर डुओडनल एट्रीजिया है, फिर एनेंसेफली है, फिर न्यूरोमस्कुलर फीटल कंडीशन है. ठीक है. तो उसके अलावा they have not written, अच्छा they have written अच्छा maternal क्या conditions हैं polyhydramnios की. Diabetes हो सकती है, gestational diabetes mellitus. I already told you, when there's diabetes think big baby big tummy. ठीक है, मैक्रोसोमिया भी होगा और polyhydramnios भी होगा. कोई placental reason हो सकती है, chorioangioma हो सकता है या AV fistula हो सकता है. These are all the reasons of polyhydramnios. और फीटल की इसमें से 5 जो आप लिख सकते हैं, just give it a long stretch, right? Multiple gestation, duodenal atresia, tracheoesophageal fistula, anencephaly, and then Downs का इधर नहीं लिखा हुआ, but जो genetic chromosomal anomalies वाले babies होते हैं इसमें भी chance हो सकता है. ठीक है. Spina bifida, cleft palate for Downs you can check, and then hydrocephalus. Okay, right. Thank you for that addition. B, what are the 3 antepartum and 2 intrapartum complications associated with polyhydramnios? Okay, एक तो antepartum, मदर का जो belly है वो बहुत ज़्यादा swell हुआ हुआ है, there's severe discomfort associated with that. फिर tense and tender abdomen हो सकता है. Fetal poles जो हैं they will be difficult to palpate. ठीक है. These are basically 3 antepartum complications. खैर नहीं इसको कह सकते, like basically discomfort in pregnancy is expected, but इनमें ज़्यादा होता है उससे. एक second. Yeah, my notes are everywhere. I've written 3 things. I've written abdominal swelling, severe discomfort. Number 2, tense and tender abdomen. Number 3, fetal pose, difficult to palpate. And then number 4, excessive compression of organs. तो जिसकी वजह से dyspnea हो जाता है. Please repeat causes. अच्छा, 5 fetal causes. Page 90 के ऊपर लिखे हैं. Multiple gestation, esophageal atresia, duodenal atresia, neuromuscular fetal कंडीशन. नहीं, ये अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चलेगा. एनेंसेफली, हाइड्रोसेफेलस, डाउन सिंड्रोम का आपको स्पाइना बाइफिडा और
cleft palate. These are all the things that you can find on ultrasound जिसके साथ polyhydramnios हो सकते हैं. Then इसमें as an addition twin to twin transfusion syndrome भी cause कर सकता है. ठीक है. Okay. B, what are the three antepartum to intrapartum complications? So 3 का मैं बताई थी, abdominal swelling plus successive discomfort, tense and tender abdomen, fetal poles difficult to palpate, and excessive compression of organs. उसकी वजह से dyspnea बहुत ज़्यादा हो सकता है. Okay, somebody is added varicose veins हो सकती हैं due to increased pressure. Okay. Then 2 intrapartum complications. अब intrapartum मुझे बहुत ज़्यादा मिली. एक तो increased chance of postpartum hemorrhage है, increased risk of placental abruption है, umbilical cord prolapse हो सकता है, premature rupture of membranes हो सकता है, maternal dyspnea ऊपर भी था और intrapartum भी maternal dyspnea बहुत ज़्यादा होगा, fetal malpresentation हो सकती है. ठीक है. So these are all the things that could cause an issue intrapartum. Okay. Repeat intra wali. Okay. Intra hai increased postpartum hemorrhage, increased risk of placental abruption, umbilical cord prolapse, increased risk, premature rupture of membranes हो सकती हैं, maternal dyspnea, fetal malpresentation. ठीक है. थिंक ऑफ इट लाइक अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो वहां से अम्बिलिकल कोर्ड भी, एक तो फ्लूइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत क्या कहते हैं हैवी हुआ है काम, तो प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है, प्लेसेंटा पुल होगी फॉर एग्जांपल है, पोस्टपार्टम हेमरेज ज्यादा हो रही है, जो अम्बिलिकल कोर्ड है उसके प्रोलैप्स होने का चांस ज्यादा है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रोलॉन्ग लेबर, यस प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है, फिर फीटस को ज्यादा स्पेस मिल गई तो फीटल मैल प्रेजेंटेशन हो गई, और वो ऊपर पुश कर रहा था लंग्स वगैरह को तो मैटरनल डिस्निया हो गया. ठीक है. तो these are all the things that can happen intrapartum. Okay. Question number 7 पे चलते हैं. You are the on-call doctor in labor ward and the nurse in charge calls you an emergency for a patient. She is para 5, delivered 1 hour back by spontaneous vertex delivery. Her labor lasted for 7 to 8 hours. You examine her and she is bleeding moderately. Her BP is 120/80. Pulse is 90 per minute. She is conscious. Baby boy is weighing 4 kg, born with APGAR score 8. ठीक है. You diagnose her case of primary postpartum hemorrhage. लो जी, इतना बड़ा सिनेरियो उन्होंने दिया है. उसके बाद पूछा है 5 causes of primary postpartum hemorrhage. तो we've already looked at this. मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ. uterine atony हो सकती है, uterine inversion, uterine rupture हो सकता है, macrosomia की वजह से perineal trauma हो गया, कोई hematological underlying disorder था. ठीक है. These are some amongst many. And what are the what are the steps of management you will take for her? She is stable. तो अभी उसको रिससिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, but that doesn't mean कि आप उसको उसका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे. आपने कॉल करनी है सीनियर को. ठीक है. और अच्छा, स्टेप्स मैनेजमेंट में सीनियर को कॉल कर दिया आपने उसको आईवी कैन्युला वगैरह डाल दिए. ठीक है. बिकॉज इन द केस दैट शी डज स्टार्ट गेटिंग अ लो ब्लड प्रेशर, फिर आपको नहीं मिलनी वेन. ठीक है ना. तो आपने पहले ही उसको डाल देना है. आपने उसकी ब्लड निकाल के क्रॉस मैचिंग के लिए भेज दिया, ब्लड भी अरेंज कर लिया जस्ट इन केस, और सारे उसके बेसलाइन करवा लिए इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. अब इस केस में बेबी बिकॉज बिग है तो आप पहले पर वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे जस्ट टू सी इफ देयर इज एनी पेरिनियल ट्रॉमा. कोई अगर ट्रॉमा है तो आपने उसको स्टिच अप कर देना है. ठीक है. क्योंकि मुमकिन है कि ब्लीडिंग वहां से भी हो रही हो. लेकिन अगर ट्रॉमा फिर नहीं है तो फिर आपने वही सारा यूट्राइन मसाज और वो सब कुछ साथ साथ करना है, ऑक्सीटोसिन देना है, फिर आगे वही स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पहले देखे थे. ठीक है. बस इसका हल्का सा ये डिफरेंट है कि बिकॉज ये स्टेबल है, इसमें आपने अभी रिससिटेटिव मेजर्स नहीं लेने, बट आपने उसको फिर भी आईवी वो वाइट बोर्ड कैन्युला वगैरह डाल के उसका आपने सब इन्वेस्टिगेशंस करवा लेनी है. ठीक है.
तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी कॉज यूट्राइन एटनी होगा. शी इज पैरा 5. ठीक है ना. तो we're done for today's papers, alhamdulillah. और